Hello everyone. In the previous lecture we have discussed the concept of bundle conductors, in which we have seen that inductance of the bundle conductor is less than compared to the horizontal configuration and other configuration. Okay, so let us discuss the advantage of bundle conductors. What is the advantage of bundle conductors? First point is inductance and inductive reactance are reduced due to increase in self GMT. And second point, due to inductance decrease, power transfer capability is increases and corona power loss also reduces. Electric field and voltage gradient on the conductors also reduces. Surge impedance also reduces. Surge impedance loading increases. I have not covered till topic surge impedance and surge impedance loading. In the unit 4 we see the concept of surge impedance and surge impedance loading. Next advantage है radio interference reduces and number of towers are reduced and cost of the transmission is minimized. Okay, so these are the advantage of bundle conductors as compared to the ACSR conductors. Next point है double circuit line. Till now we have discussed the single phase circuit, single phase line. Next topic है double circuit line. As you seen in the figure, there are three phase double circuit line in which the phase R are R1, Y and Y1 and B and B1, and after regular interval of a time the transpose line are used. ठीक है, this is your three phase circuit, and after 10 to 20 kilometer the transpose line are used. That's why here R Y B, and then after regular interval of time R Y B, then फिर after regular interval of time R Y B. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट द थ्री फेज डबल सर्किट लाइन. डबल सर्किट मीन्स आपका ये लेफ्ट हैंड साइड आपका सिंगल, ये आपका थ्री फेज, और राइट साइड भी आपका थ्री फेज सर्किट. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्किट लाइन. तो इसके लिए अगर हम सेल्फ जीएमडी एंड म्यूचुअल जीएमडी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए क्या होगा. ठीक है, अगर हम एक फेज को कंसीडर करते हैं, दिस इज टोटल लेंथ L और L/3 डिस्टेंस पे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हमने यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया है. ठीक है, तो वी कंसीडर द L/3 लाइन थ्री फेज डबल सर्किट लाइन. तो देन इंडक्टेंस पर फेज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ ln dm_r1 dm_r2 dm_r3 डिवाइड बाई ds_r1 ds_r2 and ds_r3 के पावर 1/3. This represent the only this three phase double circuit line. Okay, so we want to calculate the dm_r1 dm_r2 and dm_r3 and these denominator और numerator part. तो यहाँ पे आपका R and R1. ठीक है, यहाँ पे इस फेज को आप देखिए, दिस इज योर R and R1 फेज, Y1 फेज, B and B1 फेज. ठीक है, तो यहाँ से हमें सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी हाउ टू फाइंड, इसके लिए मेथड्स क्या हैं. तो यहाँ पे R and R1 फेज है, तो ये आपका सेल्फ जीएमडी होगा, और म्यूचुअल जीएमडी क्या होगा, अदर फेज Y1 B and B1. तो यहाँ पे dm_r1 dm_r2 एंड dm_r3 क्या होंगे. तो सपोज दैट dm मीन्स म्यूचुअल, तो यहाँ पे क्या होगा, dry dry1, फिर drb एंड drb1. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. ड्यू टू R1 म्यूचुअल जीएमडी क्या होगा, dr1y dr1y1 dr1b एंड dr1b1. और यहाँ पे 2 कंडक्टर्स है, इधर राइट साइड में 4 कंडक्टर हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर 1/2 2 × 4. ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ DSR. तो DSR मीन्स सेल्फ जीएमटी. तो यहाँ से अगर वी वांट ओनली R फेज, दैट्स वाई DRR इंटू DRR1 DR1R DR1R1, और यहाँ पे 2 कंडक्टर्स, दैट्स वाई 1/2 के पावर या 2 स्क्वायर. ओके, तो दीज आर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ जीएमडी या सेल्फ GMR. ओके,
तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वी कंसीडर 3 फेज डबल सर्किट लाइन. तो सपोज दैट A डैश, B डैश एंड C डैश, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं R इक्वल टू 2 मीटर, यहाँ पे A एंड B के फेज के बीच में 2 मीटर, B एंड C के फेज में 2 मीटर एंड सारे फेज के बीच में 2 मीटर डिस्टेंस है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट DM_R1 एंड DS_R1. ओके, यहाँ पे रेडियस आपको दिया है 12 mm और यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रिटर्न है, लेकिन क्वेश्चन आप समझिए कि एक आपको सेल्फ GMD और सेल्फ GMD एंड म्यूचुअल GMD फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये ट्रांसपोज लाइन है अनट्रांसपोज लाइन है. ठीक है, तो इसको आप ट्रांसपोज लाइन एज्यूम कीजिए. तो यहाँ पे हमने वही सर्किट एज्यूम किया और सेल्फ GMD के लिए आपको ये मेथड है. ठीक है, आप इसको इस तरह फिगर आउट कर लीजिए, तो इससे आपको आराम रहेगा. A एंड A डैश आपका सेल्फ GMD निकलेगा, बाकी अदर फेज में म्यूचुअल GMD निकलेगा. तो यहाँ से आप क्या डिस्टेंस आप फार्मूले कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, बाकी डिस्टेंस आप ओरिजिनल जो पिक्चर है वहाँ से यूटिलाइज कर लीजिए. तो ये आप सेल्फ अपने से सॉल्व कीजिएगा, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कीजिएगा. ओके, नाउ वी वांट टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस. ओके, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? Capacitance, we already know that it is equal to epsilon A divided by D, and D is the distance between the two plates. Okay, if the distance between the plates increases, then capacitance decreases. तो यहाँ पे 3 फेज डबल सर्किट लाइन है या 3 फेज हैं आपके हैं, तो कंडक्टर्स हैं RYB और ग्राउंड के फॉर्म में ये कैपेसिटेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो अगर तो इसीलिए यहाँ पे C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D रखा गया है. इफ़ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द कंडक्टर्स फ्रॉम द ग्राउंड, देन कैपेसिटेंस इज डिक्रीजेज. ओके, ये आपका सेंडिंग इन वोल्टेज है, देन वी हैव ट्रांसमिशन लाइन, देन आपका रिसीविंग इन वोल्टेज. एट नो लोड या लाइट लोड कंडीशन में क्या होता है, रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ग्रेटर होता है. तो उस केस में लाइट लोड या नो लोड कंडीशन में रिसीविंग इन वोल्टेज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज, दैट्स वाई वी यूज शंट रिएक्टर फॉर मेंटेनिंग VR इक्वल टू VS. ओके, बिकॉज इफ वी नॉट यूज या यूटिलाइज शंट रिएक्टर, then there is always receiving voltage is greater than sending in voltage. This is drawback for the system and for generator part. That's why we use maintaining VR equal to VS. यानी that's why जितना आपका सेंडिंग इन वोल्टेज है और रिसीविंग इन वोल्टेज है, यानी जितना आपका डिमांड है और सप्लाई, वो दोनों इक्वल होने चाहिए फॉर द मेंटेनिंग वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू 0. That's why under no load or light load condition, the capacitance exists between the conductors of the transmission line. That's why receiving end voltage is greater than sending end voltage. We have to maintain voltage regulation equal to 0. We have to put the shunt reactor at the receiving end. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नो लोड है, कोई भी नो लोड मतलब नहीं लगा है. That's why we use shunt reactor to maintaining VR equal to VS, and we maintain the voltage regulation equal to 0. This is called a Ferranti effect. At light load या no load condition, if the receiving end voltage is greater than VS, that is called Ferranti effect. Okay. Next है Coulomb's law. Coulomb's law, already we know that in the electrostatic टॉपिक या EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टॉपिक या इंजीनियरिंग. इट इफ ए 2 point charge are displaced by 1 meter, then a force is developed on the second charge या test charge that is given by the F equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon और into D square. ठीक, ओके, और C इक्वल टू क्या होता है, Q by V. ओके, अगर यहाँ पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक सर्कल में हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q रखा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Q1 by 4 pi epsilon और D square इक्वल टू E, दैट इज E कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल
डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, वर्क टाइम पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई चार्ज, dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई क्यू इंटू dx. if we change the in terms of the electric field तो V इक्वल टू E डॉट डी एस. यहाँ से हम अगर सिमिलर V इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एक्स. ओके, तो D अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, दिस इज योर Q2 इज टेस्ट चार्ज एंड Q1 इज पॉजिटिव चार्ज. तो D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज एंड X इज द R इज द डिस्टेंस बिटवीन द small distance. If we integrate from the small d to capital R, then a positive, then work done for this charge to close to the Q1 is given by the differential potential equation V equal to minus d integration of R E dot dx and C equal to Q by V. If we calculate electric field due to hollow cylinder या hollow conductor, if we know the formula for capacitance for the single conductor, okay, this is your cylindrical. If we place the positive charge on the one plate, if we find the electric field at the distance p, what is the electric field equal to, q equal to 2 pi epsilon r into x due to cylindrical region. ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डेरिवेशन आपको वहाँ से मिलेगा. बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, एट द पॉइंट P इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन R इंटू एक्स. इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू माइनस D बाई R Q बाई पुट द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन R ln D बाई R. अभी वी ऑलरेडी नो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V. तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन द इक्वेशन C इक्वल टू Q बाई V. तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गया, 2 pi epsilon r divided by ln d by r, that means farad per meter. If we want to calculate this formula, that is C equal to, यह फार्मूला याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जैसे आपको इंडक्टेंस में मैंने बताया था कि दिस इज द बेसिक्स ऑफ द बेसिक फार्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो दैट्स वाई हियर वी फाइंड द कैपेसिटेंस. This is the basic formula for all types of configuration. Okay, this is the important formula. Then we want to know the capacitance of single phase two wire line. Suppose that two conductors A and B, which is positive charge QA and QB, and this is your pole and the ground. So the capacitance between these ground and this charge is equal to, is called phase capacitance, but the distance between the positive charge QA and QB, the capacitance form is already this charge. That's why we calculate the CAB, capacitance between the plates A and B. तो CAB इक्वल टू क्या होगा, QA by VAB. We already know C equal to Q by V. Put the value of QA and QB in this formula. और VAB क्या है, VA minus VB. Now we want to calculate the CAB. Look how to find VA minus VB क्या होगा, put the value of VA. VA equal to QA by 2 pi epsilon R ln D by R minus put the value of QB. QB 2 pi epsilon R ln D by R. At balance condition क्या होगा, QA plus QB equal to 0. That's why QB equal to minus QA. Put the value in this equation और we want to simplification. तो VAB equal to क्या आया, QA by pi epsilon R ln D by R. तो CAB क्या होगा, QA by VAB. Put the value. तो यहाँ से फेज कैपेसिटेंस क्या आएगा, पाई एप्सिलॉन R ln D by R farad per meter. Okay, this is the single phase two wire circuit. We have find the capacitance equation. नाउ कैपेसिटेंस पर फेज या कैपेसिटेंस न्यूट्रल. ठीक है, अगर वी वांट टू नो द, दिस इज कैपेसिटेंस बिटवीन द फेज टू फेज. दैट मीन्स वी हैव टू टू कंडक्टर्स A and conductors B. If we want to calculate the capacitance between conductors, then CAB equal to pi epsilon R ln D by R. If we
now find the capacitance between phase to ground. That means CAB divided into two parts, CN and CN, and in between there is a neutral part. तो CAB क्या होगा, ये दोनों आपके सीरीज में हैं. ओके, तो यहाँ से C फेज आपका क्या निकल के आएगा, 2 CAB. ओके, दैट मीन्स CAB इक्वल टू CN बाई 2. तो पुट द वैल्यू ऑफ CN, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन r ln d by r farad per meter per phase. If we want to calculate the for 3-phase transposition line, similar to inductance, तो यहाँ पे Cn क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन r ln d1 d2 d3 डिवाइड बाई r के पावर 1/3 farad per meter per phase. If d1 d2 and d3 equal to d, then this formula is as above case. Okay, so this is the basic formula for capacitance between the neutral and phase and neutrals. Okay, ये आप important formula है, ये ध्यान रखिएगा. If we use bundle contrast, then we have to find the capacitance. तो phase equal to क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन r ln dm by ds. तो यहाँ पे जो ln d by r था, तो जैसे इंडक्टेंस में हमने न्यूमिनेटर पार्ट को GMD नाम दिया था और रेडियस को हमने सेल्फ GMR या सेल्फ GMD कहा था, तो यहाँ पे DM और DS आ जाएगा. ठीक है, तो या अगर सपोज दैट जैसे हमने इंडक्टेंस डबल सर्किट लाइन के लिए देखा था, वैसे यहाँ भी कैपेसिटेंस है. ठीक है, तो बस वही है, ln d बाई r है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ GMD और म्यूचुअल GMD रखना है, पुट करना है, बाकी सब फॉर्मूले सेम है. कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होगा, XC इक्वल टू x इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस x इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई FC. तो ये पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो वी फाउंड द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस. नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ससेप्टेंस. ससेप्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, तो यानी B इक्वल टू 1/XC, पुट द वैल्यू यानी इनवर्स ऑफ दिस टेक वी फाइंड द कैपेसिटेंस ससेप्टेंस. नेक्स्ट है टॉपिक है चार्जिंग करंट. IC इक्वल टू V बाई XC होता है, तो XC की वैल्यू 1/2 पाई FC, पुट द वैल्यू, वी कैलकुलेट द चार्जिंग करंट. नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर. Q इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, पुट द वैल्यू ऑफ V इंटू आई इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द अबव इक्वेशन. तो नाउ वी कैलकुलेट रिएक्टिव पावर. ओके, as in the previous case we have to find the inductance, now we want to calculate the different configuration for the finding the capacitance. First part is horizontal configuration. This is your 3-phase RYB and there is a distance between 2 meter but in horizontal configuration. तो C phase equal to क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन r ln d1 d2 d3 डिवाइड बाई r के पावर 1/3. तो यहाँ पे d1 d2 d2 तो आपके 2 मीटर है, लेकिन d3 आपका 4 मीटर है. तो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका 10.06 पिकोफैरेड पर मीटर पर फेज. ओके, ये वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा, 10 आया है, 10.06. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस फॉर द ट्रायंगुलर कन्फिग्रेशन, तो ट्रायंगुलर कन्फिग्रेशन है तो RYB आपके ये डेल्टा फॉर्म में है. तो कैपेसिटेंस पर फेज क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ ln d बाई r. यहाँ पे जो डिस्टेंस है सब इक्वल है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर. तो पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन एंड C2 क्या आएगा, 10.5 पिकोफैरेड पर मीटर पर फेज. यहाँ पे 10.06 था, यहाँ पे 10.5 है. दैट मीन्स इफ वी C2 इज ग्रेटर देन द C1, दैट मीन्स for the triangular configuration capacitance is greater than the horizontal configuration. Okay, but in the case of inductance आपको याद होगा we have to calculate the inductance for the triangular configuration is less than the horizontal configuration. So there is a inverse proportional to inductance and capacitance. अगर inductance less है तो capacitance आपका ज़्यादा होगा, और inductance अगर आपका less है तो capacitance ज़्यादा होगा. ओके, तो यहाँ से आप ये सब सारे पॉइंट कंक्लूड कर लीजिए. तो विद द ट्रायंगुलर कन्फिग्रेशन कैपेसिटेंस इज हायर देन टू हॉरिजॉन्टल कन्फिग्रेशन, बट फॉर द इंडक्टेंस वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस.
The effect of earth capacitance on the conductors are minimized by increasing the height of the conductor या height of the tower, क्योंकि C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D था, तो D आप अगर आप हाई इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस आपका लेस होगा. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थ इफेक्ट, अगर अर्थ इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो मेथड ऑफ इमेज इज यूज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन विच इमेज कंडक्टर्स आर एज्यूम बिलो द ग्राउंड न्यूट्रल टू द नंबर ऑफ कंडक्टर्स बीइंग अबव द ग्राउंड. अगर आपको अर्थ इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो जितने अर्थ के ऊपर जितने कंडक्टर्स हैं तो हम एज्यूम करते हैं उतना ही कंडक्टर ग्राउंड के नीचे हैं, तो इसकी हेल्प से हम अर्थ इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट आपको एक चार्ट है जिसमें आप डिफरेंट लाइन के वोल्टेज और कितना आपका ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए. ठीक है, सपोज दैट कोई भी लाइन है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लाइन वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट की वजह से उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन को स्पार्क लग सकता है हाई वोल्टेज का. दैट्स वाई एज वी इंक्रीज द वोल्टेज द ग्राउंड क्लियरेंस इज इंक्रीज. तो सपोज दैट अगर आपका 11 kV की लाइन है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ग्राउंड से उस कंडक्टर की लाइन के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 7 मीटर. अगर सपोज दैट 33 मीटर है तो उसमें 11 मीटर का क्लियरेंस डिफरेंस होना चाहिए. 11 मीटर मीन्स ग्राउंड और 33 kV के बीच में ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 11 मीटर. अगर 132 kV की लाइन है तो 20 मीटर, 220 kV की लाइन है तो 35 मीटर, 400 kV की लाइन है 50 मीटर, 765 kV की लाइन है तो 65 मीटर. तो दीज आर द ग्राउंड क्लियरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर्स लाइन. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम और अदर पैरामीटर देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने टिल नाउ वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. In next topic, in next lecture, we dealt with resistance and conductance part. Okay, thank you class.